normally distributed, then we will go for non-parametric. If the data is normal, then we'll be in the parametric test. So we have already discussed parametric. Now this data is not normal, so we will test it. Okay, now come to the your variable view. Variable view is clear. Yes, sir. And this is the data view. जो फाइल मैंने भेजी है ये आपने ओपन की? Have you opened this file which I have sent on your WhatsApp group? सर करी थी, देखी थी सर, यही थी। यही थी। यस अच्छा, सर। कितने रिस्पोंडेंट थे उस फाइल में? 30। 30 रिस्पोंडेंट यस थे। सर। सारे वेरिएबल्स क्लियर है आपको? यस सर। अच्छा, दो वेरिएबल ऐड है डेटा में, बट यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया है वेरिएबल्स में कौन कौन से वेरिएबल्स है जो हमने यहाँ मेंशन नहीं किया, बट एज एंड इनकम। एज एंड इनकम। हाँ, ये एक्चुअली आगे के टेस्ट में यूज होते हैं, इस वजह से हमें बाद में हमने एंट्री की है इसकी डेटा की। तो सबसे पहले हमें 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, बाद में दो वेरिएबल्स और क्रिएट करने पड़े, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। ओके सर। हाइपोथेसिस इस तरह की डिजाइन कर दी गई थी जिसमें हमें वो दोनों वेरिएबल्स की भी रिक्वायरमेंट हो गई थी। क्लियर? तो सबसे पहले हम चार वेरिएबल्स को, कितने वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए? 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 इज एडेड लेटर। एज एंड इनकम। क्लियर? Now, what is the steps in testing the non-parametric test? Click Analyze, select non-parametric test, legacy dialogues, and click on one sample chaos test that is visible in this format. Analyze, non-parametric test, legacy dialogues, one sample chaos test. It is clear or not? Analyze, non-parametric test, legacy dialogues, and one sample KS. What is one sample KS test? Anybody? So this is a non-parametric test to be used in case of data which is not normal and homogeneous. It is used in place of parametric test जो हम वन सैंपल टी टेस्ट यूज करते हैं। ये है Kolmogorov-Smirnov test. This is used for normality test, not homogeneity. Normality, yes sir. Only When normality. data is not normal. Yes. So, case one. Sir, Today is the one question, sir. yes. Sir, how we decide that our data is not normal? हाँ, यही तो आगे आने वाला है। ओके सर। केस वन क्या है, हमें डिस्कस करना है। वी हैव टू डिस्कस वन सैंपल केएस टेस्ट। केएस टेस्ट इज यूज्ड फॉर चेकिंग द नॉर्मेलिटी ऑफ डेटा। क्लियर? दिस टेस्ट इज क्रिएटेड बाय टू रशियन साइकोलॉजिस्ट, क्लोमोगोरोव, स्मिर्नोव। दो साइंटिस्ट हैं, दोनों के अलग अलग नाम हैं, ये एक ही पर्सन नहीं है वो।
This is the only test to determine the distribution of data. This test can be used on ordinal interval ratio data. This line is very important. In this test, we check whether our data is normally distributed, Poisson distributed, exponential distributed or uniformly distributed. 4 तरह की चीजें हम चेक कर सकते हैं. क्या? डेटा हमारा नॉर्मल है, डेटा हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड है, डेटा हमारा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड है, डेटा हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. Then we have designed a hypothesis like this. There is no significant difference between distribution. Distribution means column variable data given in the data view of SPSS file. And test distribution is known as normal distribution oblique Poisson distribution oblique exponential distribution oblique uniform distribution. कोई एक टेस्ट करेंगे, नॉर्मल और पॉइजन और एक्सपोनेंशियल और यूनिफॉर्म. यहां पे हमारे सामने कितने वेरिएबल्स हैं? 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स हैं. कितने वेरिएबल्स हैं? 5. हर वेरिएबल्स का हमें नॉर्मेलिटी चेक करना है. तो कितनी नॉर्मेलिटी टेस्टिंग हो गई? 5 वेरिएबल्स की 5 टेस्टिंग हो गई. हम एक साथ भी कर सकते हैं एंड सेपरेट भी कर सकते हैं. क्लियर? Clear, sir. Hypothesis is clear or not? There is no significant difference between the distribution. Distribution means जो डेटा हमारे पास है. कौन सा डेटा? ये जो हमने फीड किया है, ये डेटा. This is known as distribution. और किससे हमें चेक करना है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से. एक सिस्टम ने अपने से जनरेट किया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा, उससे हम चेक करते हैं अपने डेटा को. तो if there is no difference and if there is a difference, the distribution is normal about mean. ऐसे भी बना सकते हैं हम हाइपोथेसिस को. The distribution is normally distributed above the mean. ऐसे भी बना सकते हैं. तो हमने क्या मान लिया अपने डेटा को? नॉर्मल है. यही तो माना है सागर? Yes, sir. क्या माना हमने अपने डेटा को कि नॉर्मल, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन. टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मींस जो हम टेस्ट करने वाले हैं 4 तरह के टेस्ट. नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी चेक करेंगे, पॉइजन भी चेक करेंगे, एक्सपोनेंशियल भी, यूनिफॉर्म. 4 तरह की टेस्टिंग हो सकती है अपने डेटा की. Yes, लेकिन sir. हमें सिर्फ जरूरत सिर्फ पहले वाले की है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की. अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा डेटा, तो हम किधर जाएंगे? Parametric test. पैरामेट्रिक. अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो किधर जाएंगे? Non-parametric test. नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की तरफ जाएंगे. Now come to the normal graph. What is normal graph?
मीन median. मीन इज जीरो, स्टैंडर्ड डेविएशन इज यूनिटी। ऐसा डेटा जिसका मीन जीरो हो और स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिटी हो। नॉर्मल कर्व, सिमेट्रिकल साइड, बोथ साइड सिमेट्रिकल शुड बी, इट शुड बी बोथ साइड सिमेट्रिकल। जैसे 30 रिस्पोंडेंट है, कितने रिस्पोंडेंट है हमारे? 30. तो 15 लेफ्ट साइड में आने चाहिए, 15 राइट साइड में आने चाहिए। Right, sir. और कोई भी एसिमेट्री नहीं होनी चाहिए। सिमेट्रिकल फॉर्म में अगर हम सबको यहाँ पे फिल कर दें, अगर हम सारे रिस्पोंडेंट को फिल कर दें तो थिंग ऐसी दिखनी चाहिए, ठीक सर. पूरा का पूरा भर जाना चाहिए ये शेप, तो उसको हम नॉर्मल कहते हैं। स्टेप 4, स्टेप 4 क्या कहता है? हाँ, रीड इट ज्योति। Send the 4 variables, average salary, number of books, fees, recruiter numbers in the text variable list box and check on normal and Poisson under the distribution section, and in last click on OK button to get the result as shown. जैसे हम वन सैंपल टेस्ट को, केएस टेस्ट को सेलेक्ट करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस डायलॉग बॉक्स में एक बॉक्स दिख रहा है टेस्ट वेरिएबल लिस्ट, और नीचे एक बॉक्स दिख रहा है टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का। 4 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहे हैं आपको चेक बॉक्स के फॉर्म में। कौन कौन से? नॉर्मल, यूनिफॉर्म, पॉइजन, एक्सपोनेंशियल। तो हमें क्या चेक करना है अभी? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है। तो हमने चेक बॉक्स कौन सा लगाया है? नॉर्मल वाला। लेकिन हाइपोथेसिस में हमने बनाने के लिए आपको चारों लिख के बता दिया, लेकिन हम वहां पे सभी का यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतना ही यूज करेंगे। क्लियर? Yes, sir. ये समझने के लिए हमने बना दिया कि आप नॉर्मल की जगह आप रिप्लेस कर देंगे पॉइजन को, पॉइजन की जगह नॉर्मल की जगह रिप्लेस कर देंगे एक्सपोनेंशियल को, एक्सपोनेंशियल की जगह रिप्लेस कर देंगे यूनिफॉर्म। इफ यू वांट टू चेक ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन लाइक नॉर्मल, पॉइजन, एक्सपोनेंशियल, यूनिफॉर्म, सभी को टेस्ट करना चाहते हैं। जरूरत हमारी सिर्फ नॉर्मेलिटी चेकिंग की है। क्लियर? और कितने वेरिएबल की टेस्टिंग होने वाली है? 4 कॉलम्स की, सेपरेटली, अलग अलग। तो एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। This is the desired result and I have copied this result on this Word file. There are 4 variables and the result are 0.00000. Since significance value p value is 0.000 in all the 4 columns is less than 0.05, hence reject the null hypothesis. Jyoti, please read it. So yes, interpretation. Since significance value p value is 0.000 in all the 4 columns is less than 0.05, hence reject the null hypothesis H0 that all the 4 variables are not normally distributed about the mean, and this also means that we cannot apply parametric test on these 4 variables, but we can apply non-parametric test on these variables. Is there any confusion from the other participant? सभी को क्लियर हुआ ये? Yes, sir.
सर दिस टेस्ट इज, हाँ यस, सर हमने सर ये टेस्ट जो पिछली 3 क्लासेस में यूज नहीं करा नॉर्मेलिटी चेक करने के लिए। हाँ इसीलिए नहीं यूज करने के लिए बोला था पहले हमने कि यहाँ पे अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते तो आप कंफ्यूज हो जाते। अच्छा अच्छा सर, वैसे उन डेटा को भी सर चेक कर सकते हैं ना नॉर्मेलिटी? यस, चेक कर सकते हैं। अगर नॉर्मल डेटा नहीं है वो, हम्म। तो अगली क्लासेस में जो पढ़ाई होगी आपको वहां पे वो टेस्ट रिप्लेस करना होगा। वहां पे अच्छा जो आउटपुट जनरेट हुआ वहां पे आपको रिप्लेस करना होगा। लेकिन अभी सिंस जो प्रीवियस क्लासेस में हमने नॉर्मेलिटी डिस्कस नहीं किया था, तो वो आपका केस स्टडी के फॉर्म में वो सही है। लेकिन आगे की चीजों में जब चीजें हम करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, तो फिर ये चीजें आपको वहां पे चेक करके ही आगे बढ़ना है। ठीक 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 सर। हाँ, तो हमने क्या किया है, दूसरा भी एक टेस्ट कर लिया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। लेट द वेरिएबल हैज ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट मीन, ऐसा मान लिया हमने। और पॉइजन का डेटा भी यहाँ पे हमने रिसीव कर लिया, यहाँ पे इस टाइप का आ रहा है, वो भी 0.05 से कम है। ठीक। जैसे हमने क्या किया, चेक बॉक्स हमने दोनों लगा लिया यहाँ पे, नॉर्मल एंड पॉइजन को भी दोनों को चेक कर लिया, एक बार नॉर्मल को एक बार पॉइजन को। ठीक ठीक ठीक। दोनों के आउटपुट जनरेट हो गए यहाँ पे। तो इसके लिए हमने क्या बोला, इंटरप्रिटेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही सेम। All the four variables are not Poisson distributed about mean. पॉइजन की जरूरत यहाँ पे नहीं है, लेकिन हमें नॉर्मेलिटी से काम हो गया। तो अगर हमारा डेटा नॉर्मल नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट करना चाहिए। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आपने यहाँ पे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट डिस्कस कर लिया है पैरामेट्रिक के फॉर्म में पहले। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन पैरामेट्रिक के फॉर्म में सेम टेस्ट, वही टेस्ट जो इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। तो हमने एक हाइपोथेसिस क्रिएट की, the two groups have similar values, the nominal grouping variable influence the test variable। इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर देते हैं, the engineers and commerce graduate give the same rank for average salary in rating the B school। यहाँ पे कितने ग्रुप हैं हमारे सामने, 2 दो। groups। लेकिन हमने डेटा लिया है कितने ग्रुप्स का, 4 ग्रुप का। लेकिन हम टेस्ट सिर्फ कितना करना चाह रहे हैं, 2 ग्रुप्स को। तो 2 ग्रुप्स की टेस्टिंग को क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। अगर हमारे पास 4 ग्रुप्स होते तो क्या बोलते, एनोवा। एनोवा, यस एनोवा बोलते हैं। तो इंजीनियर्स को हमने 1 रेट किया है, कॉमर्स को 2 रेट किया है, थर्ड इज साइंस को 3 किया है, और अदर्स को हमने क्या रेट किया है, 4। इंजीनियर्स 1, कॉमर्स 2, साइंस 3, अदर्स 4। क्लियर? यस सर। लेकिन हम टेस्ट किसको कर रहे हैं, इंजीनियर्स एंड कॉमर्स की चेकिंग कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, एवरेज सैलरी के रिस्पेक्ट में। तो एवरेज सैलरी हमारे एक वेरिएबल हो गया, और दूसरा वेरिएबल क्या हो गया हमारा, रिस्पोंडेंट टाइप हो गया। तो हाइपोथेसिस इज क्लियर और नॉट? यहाँ पे हमने ऐसा क्यों लिखा, 2 ग्रुप्स हैव सिमिलर वैल्यूज, ये क्या है, ये सही हाइपोथेसिस है कि गलत है?
टू ग्रुप्स हैव सिमिलर वैल्यूज, ये ऐसा क्यों लिखा हमने? सर क्योंकि दोनों इंजीनियरिंग और कॉमर्स ग्रेजुएट की सैलरी जो है एवरेज सैलरी सेम है, तो हमेशा मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, हाइपोथेसिस बना रहे हैं। ये हमने टू ग्रुप्स और सिमिलर वैल्यू इसलिए लिखा है कि ये अगर आपका केस डिफर हो जाए या इंजीनियर्स और कॉमर्स की जगह कुछ और आ जाए, तो ये टू ग्रुप्स का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। टू ग्रुप्स का मतलब ये दो ग्रुप्स, अगर आपके ग्रुप चेंज होते हैं तो टू ग्रुप्स तो सेम रहेगा, बट यहाँ पे चेंज आ जाएगा आपका इंजीनियर्स और कॉमर्स के, जैसे यहाँ मेल और फीमेल आ जाएगा अगर टू ग्रुप्स है मेल फीमेल। सिमिलर वैल्यूज का मतलब क्या है? सिमिलर वैल्यूज का मतलब क्या है? सिमिलर सैलरी। सिमिलर सैलरी, सैलरी का डिस्कशन हो रहा है। रैंकिंग, सेम रैंक फॉर एवरेज सैलरी। और ग्रुप्स ये हैं आपके। यहाँ पे टेस्ट आपके सामने आ रहे हैं कौन कौन से। मैन विटनी टेस्ट, सबसे पहला नंबर पे ही टेस्ट टाइप दिखा हुआ है, मैन विटनी यू टेस्ट। और दो बॉक्स भी दिख रहे हैं, टेस्ट वेरिएबल लिस्ट एंड ग्रुपिंग वेरिएबल। तो टेस्ट वेरिएबल लिस्ट में कौन सा वेरिएबल सेंड होना चाहिए? सर ये कैसे आया? सर ये विंडो कैसे ओपन हुई? ये विंडो ओपन हुई जब हम वहां पे सबसे पहले एनालाइज में गए थे। एनालाइज में गए थे, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को चेक किया, उसके बाद लेगेसी डायलॉग बॉक्स देखा, उसके बाद वन सैंपल की जगह पे नीचे क्या दिख रहा है उसके, टू इंडिपेंडेंट सैंपल। ठीक ठीक ठीक, यहां से ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। ठीक। हाँ, तो टेस्ट वेरिएबल लिस्ट में कौन सा सेंड कर दें हम? सर एवरेज सैलरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। और ग्रुपिंग वेरिएबल में कौन सा सेंड कर दें? रिस्पोंडेंट टाइप। रिस्पोंडेंट टाइप। तो हमने, और कौन सा टेस्ट हम यूज कर लें इसके लिए? मैन विटनी यू टेस्ट, तो उसको हमने चेक बॉक्स, अदर टेस्ट भी दिए हुए हैं, 4 अदर टेस्ट भी हैं, 3 अदर्स भी है, लेकिन उसकी अभी जरूरत नहीं है। लेकिन हम चाहें तो मैन विटनी एंड केएस जेड दोनों कर सकते हैं। मैन विटनी यू टेस्ट भी यूज होता है, केएस जेड टेस्ट भी यूज होता है इसके लिए, तो हम दोनों को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक ठीक। क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हमारा डेटा कैसा है, नॉर्मल है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। तो आप इसको पढ़ो, क्या लिखा है। हाँ, और कौन है? शिवानी है, नीरजा। यस सर, पढ़ रहे। हाँ नीरजा, आप यस सर। Send the average salary in the test variable list box and respondent type in grouping variable box. Then define groups will be highlighted and click on define groups and type 1 for group 1 and type 2 for group 2 and click on continue to return the previous box as shown below. जैसे हमने डिफाइन ग्रुप पे क्लिक किया, एक नया बॉक्स खुल जाता है टू इंडिपेंडेंट नाम से, जिसमें हमें ग्रुप 1 को 1 करना है, ग्रुप 2 को 2 करना है, क्योंकि हम चेकिंग किसकी कर रहे हैं, 1 एंड 2 रिस्पोंडेंट टाइप की। अगर हम 3 और 4 को चेक करना चाहें तो यहाँ पे 3 4 लिखेंगे। अगर हम 1 और 4 को चेक करना चाहें तो 1 और 4 लिखेंगे। अगर हम 1 और 3 को चेक करना चाहें तो 1 और 3 लिखेंगे। अगर हम 3 और 4 को चेक करना चाहें तो यहाँ पे 3 और 4 लिखेंगे। क्लियर? क्लियर सर। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारी हाइपोथेसिस में क्या चेंज आएगा? सर बस स्ट्रीम चेंज हो जाएगी। हाँ, स्ट्रीम चेंज हो जाएगी। चेंज हो जाएगी। जहाँ इस इंजीनियर्स एंड कॉमर्स बैकग्राउंड लिखा हुआ था,
वहां पे कॉमर्स एंड अदर्स हो जाएगा, फिर इंजीनियर्स एंड, मतलब आपस में जितना मर्जी उतना चेक करो आप। तो हमें क्या करना है, आपको केस डिजाइन करते वक्त कि बीबीएयू में कितने स्पेशलाइजेशन चलते हैं मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में। स्पेशलाइजेशन एमबीए बच्चों के कितने हैं? 4। 4 है। कौन कौन से हैं? फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, आरएम। हाँ, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, आरएम, रूरल मैनेजमेंट। तो 4 टाइप्स हो गए बच्चे सर बीबीए भी आएगा वैसे? हैं। बीबीए है वैसे, मानेंगे इसके स्पेशलाइजेशन? एमबीए पूछा है। एमबीए पूछा मैंने। ठीक ठीक ठीक। हाँ, बीबीए के लिए भी चेक कर सकते हैं, बीबीए के भी स्पेशलाइजेशन हुए। अच्छा, उनके सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स हम लोग लिख सकते हैं। सारे सब्जेक्ट जो हो गए, हाँ सर। वो उसका डेटा अगर उसके मार्क्स हम लोग नोट कर ले सभी के आउट ऑफ 100, तो क्रिएट हो जाएगा ऐसा डेटा समथिंग। हाँ हो सकता है। फिर उस डेटा को हम क्या चेक चेक कर लें, नॉर्मेलिटी चेक कर लें। नॉर्मलिटी चेक, ठीक है। फिर उसके बाद पैरामेट्रिक के तरफ जाएं या नॉन पैरामेट्रिक के तरफ जाएं, और फिर हम किसी भी स्पेशलाइजेशन को चेक कर सकते हैं कैसे भी करके। फाइनेंस का आरएम के साथ क्या, आरएम का एचआर के साथ क्या है, मार्केटिंग का आरएम के साथ क्या है, किसी भी ग्रुप के बच्चों को हम कंपेयर कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स मींस सब्जेक्ट। तो केस क्लियर हो रहा है? यस सर। कैसे Yes, केस sir. डिजाइन करेंगे, इसके अकॉर्डिंगली कैसे केस डिजाइन करेंगे हम। वेरिएबल्स हम मार्क्स को ले सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने दिया अपने ही, अगर हम अपने ही यहाँ के मैनेजमेंट के बच्चों को हम टेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। मतलब आकाश होता तो उसको फायदा होता आज की क्लास से। क्योंकि आकाश के पास सारा डेटा होता है। यस सर। तो आकाश एक सेकंड में वो मास्टर हो जाता कि पूरे एमबीए के बच्चों को बता सकता था कि क्या, मतलब डिसीजन मेकिंग उसकी बहुत आसान हो जाती है इस मैटर पे। राइट सर। सर को बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता था अगर वो सारा बता देता, सारे बच्चों का स्टेटस क्लियर करके। कोई नहीं सर, हम उनको रिकॉर्डिंग दे देंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं, कि इसकी यूटिलिटी क्या है, आप समझ में आ रही है? आ रही है सर, समझ में आ रही है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं 1-2 को चेक करना है, इसलिए हमने 1-2 यहाँ पे नोट किया है। क्लिक ऑन मैन विटनी एंड चेक ऑन कोलमोरॉय स्मिर्नोव जेट टेस्ट। अच्छा, ये टेस्ट जो है हमारी नॉर्मेलिटी के लिए भी यूज होता है एंड इंडिपेंडेंट के लिए भी यूज होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस जेड का है, यहाँ पे, वहां पे जेड वैल्यू नहीं थी। नाउ कम टू द आउटपुट सेक्शन। कुछ ऐसा आउटपुट जनरेट होता है जिसको हमने कॉपी कर लिया है। कॉपी द रिक्वायर्ड टेबल फॉर इंटरप्रिटेशन एज शोन। मैन विटनी टेस्ट की जो फिगर हमें नोट करनी है वो पहली वाली नोट करनी है। अगर विल्कॉक्सन की फिगर हमें नोट करनी होगी तो ये वाली फिगर है। दिस वन हमें यूज करना है सिर्फ 181 सिग्निफिकेंस वैल्यू टू टेल्ड मैन विटनी यू टेस्ट। एक्चुअली ये टेस्ट कई जनरेट हो जाते हैं, लेकिन हमें यूज जो करना है मैन विटनी का यूज करना है एंड दिस वैल्यू which I have written in green color. शिवानी, शालिनी, शालिनी। Yes, हाँ हाँ, इंटरप्रिटेशन आप यहाँ से पढ़ो क्या लिखा है। since significance value p-value is equal to 0.181, which is greater than 0.05, hence accept null hypothesis. Therefore, we can conclude that engineers and commerce graduate have the same rank for average salary in rating the business school.
अच्छा, यहाँ पे एक्सेप्ट H0 की जगह पे कुछ और भी लिख सकते थे। Sir, Sir, reject the H1 भी लिख सकते हैं क्या? हैं? sir, reject the null alternate hypothesis. हाँ, यहाँ पे हम लोग लिख सकते थे रिजेक्ट अल्टरनेट, मतलब एक्सेप्ट H0 की जगह पे आपके ऊपर है, आप H0 का यूज करो या अल्टरनेट, लेकिन आप यूज एक ही करो, आइदर अल्टरनेट यूज करो पूरे रिसर्च पेपर में या नल यूज करो, दोनों को मिक्स नहीं करना है हमें। लेकिन यहाँ हमने समझाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा बताने की कोशिश की है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट तो हमें क्या यूज करना है ये ध्यान देना है, अल्टरनेट का यूज करना है या नल का, तो हमने नल का ही यूज किया है। तो नल क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है। एक्सेप्ट का मतलब क्या, क्या बनाया था हमने हाइपोथेसिस, इसको एक्सेप्ट करना है। द इंजीनियर्स एंड कॉमर्स ग्रेजुएट गिव द सेम रैंक फॉर एवरेज सैलरी इन रेटिंग द बी स्कूल्स। अच्छा, अल्टरनेट अगर बनाना होता तो क्या लिख देते हैं यहाँ पे, हाइपोथेसिस में कैसे बना लेते हैं अल्टरनेट को बनाने के लिए? शालिनी? सर, हाँ, कैसे बनाते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं? इसको H1 बनाना अगर हमें, इंजीनियर्स एंड कॉमर्स ग्रेजुएट, इसमें करते हैं नॉट सेम रैंक फॉर एवरेज सैलरी इन रेटिंग द बिजनेस स्कूल। इंजीनियर्स एंड कॉमर्स ग्रेजुएट गिव द सेम रैंक, नॉट सेम रैंक फॉर एवरेज सैलरी इन रेटिंग द बिजनेस स्कूल। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, डज नॉट। यस सर, डज नॉट। ये भी सही है। यस सर। दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहें इसको, और दूसरे तरीके से, सर सेम की जगह डिफरेंट लिख सकते हैं। गिव द डिफरेंट, समझ में आ रही है कि नहीं बात? यस सर। मतलब Yes, sir. हाइपोथेसिस में हल्का सा चेंज करने पे मीनिंग चेंज हो जा रही है। तो ये आपको प्ले करना आना चाहिए नल और अल्टरनेट के साथ, कि हम कौन सा वर्ड यूज करें जिससे हमें प्लेगरिज्म में बच